أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم. وَإِذَا اور جب جاء آ جائے ہم ان کے پاس، ٹھیک ہے، آ جائے، جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا، امر کوئی خبر، من الامن من سے امن کی، او یا الخوف خوف کی، جب کوئی خبر امن کی یا خوف کی ان کے پاس پہنچتی ہے، اذاعوا به، اذاعوا تو وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اذاع یذیع اذاعتا، اذاع ریڈیو کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں خبریں پھیلائی جاتی ہے، تو اعاذوا اذاعوا وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں به اس خبر کو، ولو اور اگر ردوہ وہ اسے لٹھاتے الی طرف الرسول رسول کی، و الی اور طرف اولی ذمہ دار صاحب الامر معاملے کے، یعنی اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، منہم ان میں سے بعض، لعلمہ تو وہ اسے جانتے، تو وہ عالمہ وہ اسے جانتے، الذین وہ لوگ، یستنبطونہ جو کھوج لگا سکتے ہیں اس کی، منہم ان میں سے، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کچھ کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم تو تم اتباع کرتے، الشیطان شیطان کی، الا قلیلا مگر بہت کم، یعنی مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا تو تم تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، فقاتل فی سبیل اللہ تو تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، یعنی پیغمبر علیہ السلام اس لیے تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لا تکلفو تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا، تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا گیا، الا مگر نفس کا اپنے آپ کا، اپنے نفس کا، تم سے تمہارے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وحرص المؤمنین البتہ تم ترغیب دو مؤمنین کو، عسا ممکن ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان یکف روک دے، بأس لڑائی کو، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ اشد بأسا زیادہ سخت لڑائی کے اعتبار سے، واشد اور زیادہ سخت تنکیلا سزا دینے کے اعتبار سے، فقاتل فی سبیل اللہ لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے،
वहर्रिज़ المؤمنين البتہ مومنین کو ترغیب دیتے رہو عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے اور اس کی سزا کیا ہے بڑی سخت ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو تو گزشتہ آیات میں منافقین کی مذمت بیان ہوئی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی اطاعت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن جب وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اسکیمیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تمام باتیں لکھ لی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ سزا کے مستحق ہوں گے پھر آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ دیا کریں آپ ان سے اعراض کر دیا کریں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کارساز کام بنانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین اور یہود کا شکوہ کیا کہ یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اگر اس طرف توجہ دیتے تو یہ جان لیتے کہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے اور اس کے معارف بہت بلند ہے صحیح ہے یہ علم اور حکمت کا خزانہ ہے اس کا لایا ہوا نظام بے مثال ہے جب یہ چیزیں واضح ہو جاتی تو انہیں نبی کی ذات کے متعلق کوئی تردد باقی نہ رہتا اور کلام الہی میں شک نہ کرتے تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر خبر کی بغیر تصدیق اور تحقیق تشہیر کرنے سے منع فرمایا اسلام کی ابتدائی جنگوں کے دوران لوگ محاذوں سے آنے والی خبروں کے منتظر رہتے تھے پھر جو ہی کوئی خبر پہنچتی تو اسے بغیر تحقیق مشہور کر دیتے حالانکہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر بعض چیزوں کی تشہیر نقصان دہ ہوتی ہے اس معاملے میں منافقین اور یہودی پیش تھے اور کمزور دل مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی یہاں امن کی خبر سے مراد خوشخبری ہے یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی مال غنیمت حاصل ہو گیا یا اور کوئی کامیابی حاصل ہو گئی تو اسے امن سے تعبیر کیا گیا اس کے برخلاف اگر شکست آ گئی جانی یا مالی نقصان ہو گیا تو اسے خوف کا نام دیا گیا ہے مطلب یہ کہ جب کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے تو منافقین اور کمزور مسلمان اذاعوا به اس کو پھیلا دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں حالانکہ ایسی باتوں کی تشہیر بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی اہل اسلام اور دین کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے ہر بات کو بغیر تحقیق آگے پہنچانا درست نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے
कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बगैर छानबीन के आगे चलाए। फरमाया कि जब भी कोई ऐसी खबर पहुंचे तो उसके लिए सही तरीक़ाकार ये है, वलौ रद्दूहु इला रसूल, अगर ये लौटाते इसी बात को रसूल की तरफ, व इला उलिल अम्रि मिनहुम, या अपने में से साहिब अमर की तरफ, तो इसका फायदा ये होता लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, कि उनमें से तहकीक और तजस्सुस करने वाली बात की हकीकत को जान लेते। मकसद ये कि किसी खबर को आम करने से पहले लाजिम है कि उसे जिम्मेदार लोगों के सामने पेश किया जाए, वो उसकी बाकायदा तहकीक और तस्दीक करे और फिर फैसला करे कि आया उस खबर की तशहीर इस्लाम के मफाद में है या नुकसान में। तो इस ज़मन में फरमाया कि किसी मामले में हतमी फैसला अल्लाह के रसूल का होता है। अगर अल्लाह का रसूल उस मकाम पर मौजूद है तो ऐसी बात फौरन उसके नोटिस में लाओ और फिर उसके फैसले के मुताबिक अमल करो। और अगर रसूल खुदा मौजूद नहीं है तो फिर ऐसी बात आपके नायब या उलिल अमर के पास ले जाओ, जिम्मेदार के पास लेके जाओ, ताकि वो हालात के पेश नज़र फैसला करे कि इसकी तशहीर मुफीद भी है या नहीं। उलिल अमर का लफ्ज़ पहले भी आया है, वहां भी हुक्म हुआ था कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने में से जो साहिब अमर है उसकी इताअत करो। तो वहां पे भी इस बात की वजाहत की गई थी कि साहिब अमर से मुराद मुसलमान हुक्काम भी है और उम्मत के उलमा और फुक़हा भी है। अगर मामला इंतज़ामी नौइयत का है तो वो हाकिम वक्त के पास जाएगा, क्योंकि फ़ौज की तंजीम, शहरी दिफा और दीगर मुल्की नज़्म व नस्र की जिम्मेदारी हुकाम पर होती है, इसलिए ऐसे मामलात में वही बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर मामला हिल्लत और हुर्मत का है, किसी बात के जायज़ नाजायज़ होने का है, इसमें शरीफ फतवे की ज़रूरत है, तो फिर ऐसा मामला उलमा और फुक़हा के सामने पेश करना चाहिए ताकि वो अपनी इल्मी तहकीक की रोशनी में मसले का हल पेश कर सके। जैसा कि अभी आपको बताया कि हर नाजुक मामले की पेशगी तहकीक असबस ज़रूरी होती है, वरना किसी गलत फहमी या गलत खबर की वजह से बड़े बड़े नुकसान का खतरा भी हो सकता है। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को एक कौम के पास ज़कात की वसूली के लिए भेजा, तो जब ये शख्स उस बस्ती के करीब पहुंचा तो वो लोग उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदा समझ के इस्तकबाल के लिए बस्ती से बाहर निकले। उस शख्स की गांव वालों से कुछ देर अदावत थी, वो समझा कि शायद उस अदावत की वजह से ये लोग मुझे हलाक करने के लिए निकले हैं। इसी गलत फहमी की वजह से ज़कात वगैरह जमा किए बगैर वापस आ गया और आकर ये मशहूर कर दिया कि वो लोग न सिर्फ दीन से फिर गए हैं और ज़कात की अदायगी से भी इनकार कर दिया, बल्कि मुझे मारने के लिए निकले थे। मामला बड़ा नाजुक था। तो अहले इस्लाम एक कौम के इर्तिदाद और ज़कात से इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर सूरत हाल की तहकीक न की जाती तो करीब था कि उन लोगों के खिलाफ कोई फौरी कार्रवाई हो जाती और मुसलमानों के हाथ मुसलमानों को नुकसान पहुंचता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई ऐसी खबर पहुंचे तो उसकी तहकीक कर लिया करो। सूरह हुजुरात में इरशाद फरमाया गया कि ऐ ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई ऐसी वैसी खबर पहुंचे तो उसकी तहकीक कर लिया करो
कि कहीं नादानी और जहालत की वजह से कोई नुकसान ना उठा बैठो। आगे भी फरमाया कि वहां भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी शख्स को गलतफहमी की बिना पे काफिर समझ के कत्ल ना कर दिया करो, बल्कि उसकी तहकीक कर दिया करो। ऐसा ना हो कि बेगुनाह मुसलमान तुम्हारे हाथों मारा जाए। जंग के दौरान बाद ऐसी खबरें जंगी प्रोपेगेंडे के तौर पे भी फैला दी जाती है ताकि दुश्मन पर उसका मनफी असर हो। बाद औक़ात अपनी कामयाबी और दुश्मन की नाकामी को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है ताकि मुखालिफ फरीक की फौज को आसाबी तौर पे कमजोर किया जा सके और आवाम में बददिली फैला दी जाए। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन का हाल ये होता है कि मुसलमानों में ज़ौक़ पैदा करने के लिए गलत प्रोपेगेंडे करते हैं कि हमने ये कर दिया। तो आज के ज़माने में भी अंग्रेज़ जो है प्रोपेगेंडे के हथियार को मुअस्सिर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर खबर को बगैर सोचे समझे न फैलाया करो, बल्कि उसे उसके अहल लोगों के सामने पेश करो, फिर जो कुछ फैसला करे उसके मुताबिक अमल करो। आजकल सोशल मीडिया में हमें देखना चाहिए कि कोई बात आई नहीं होती, बगैर तहकीक के हम शेयर कर देते हैं। तो क्या इसकी शरअन गुंजाइश है, इजाजत है या नहीं? फिर जब आगे से पूछते हैं तो बता देते हैं कि जी वो ग्रुप में शेयर हुआ था, फलाने ने शेयर किया था, इसलिए मैंने आगे शेयर कर दिया। जब तक किसी मामले के बारे में तहकीक ना हो सही तरीके से, उस चीज को हरगिज़ शेयर ना करें। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में लफ्ज़ यस्तंबितून से कई बातें साबित होती है। मसलन ये कि नई पेश आमदा मसाइल का हल कुल्ली तौर पे नुसूस से नहीं हो सकता। नस ऐसी चीज को कहते हैं जो कुरान से या हदीस से सराहतन साबित हो। नए मसाइल में चूंकि नस मौजूद नहीं होती, लिहाजा उनका हल इस्तिंबात से ही मुमकिन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने मामलात को अल्लाह के रसूल या साहिब अमर के पास लेके जाओ जो इस्तिंबात की अहलियत रखते हैं। तो अगर शरीयत का मसला हो तो उसे अहले इल्म के सामने पेश करना होगा। हर शख्स हर मसले में खुद मुफ्ती नहीं बन सकता, क्योंकि कुरान मजीद में यह हुक्म मौजूद है, बस अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो, वही उसका हल पेश करेंगे। गोया कि अल्लाह ताला ने यहाँ इस्तिंबात का एक अजीम उसूल बयान फरमा दिया। इस्तिंबात का लफ्ज़ नब्त के मादे से है, नून बा फ़ा, और इसका माना जमीन की तह में मौजूद पोशीदा पानी को आलात की मदद से निकालना। जमीन की तह में मौजूद पोशीदा पानी को आलात की मदद से निकालना है। तो यहाँ भी इस्तिंबात से मुराद क़ियास और इज्तिहाद के जरिए किसी मसले का इस्तिखराज है। ये मुज्तहिद का काम है कि वो मसले की बुनियाद तलाश करे और देखे कि इसका ताल्लुक कौन सी दलील के साथ है, फिर उसमें गौर व फिक्र करके नए आने वाले मसले का हल पेश करे। जाहिर है कि मुज्तहिद के पास क़तई इल्म तो नहीं होता, क्योंकि क़तई इल्म फ़कत नबी को बज़रिए वही हासिल होता है। लिहाजा मुज्तहिद का इज्तिहाद ज़न्न गालिब पे मबनी होता है और इसी पर वो मसले का हल पेश करता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिंबात हुज्जत शरई है और ये हर शख्स का काम नहीं है। जाहिर है कि नया मसला अहले इल्म के आगे पेश होगा, तो जब वो उसका हल पेश कर देंगे तो फिर आम लोगों का फर्ज होगा कि वो उस पर अमल करेंगे। इस तरह गोया अहले इल्म की तकलीद आवाम पे वाजिब हो गई, इसलिए अल्लाह ने ऐसे मसाइल को अहले इल्म की तरफ लौटाने का हुक्म दिया ताकि लोग उनके फैसले पे सर तस्लीम खम करें। यही तकलीद है।
इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिंबात नबी और उम्मती दोनों में पाया जाता है। बाज़ औक़ात जब वही नहीं आती तो नबी खुद भी मसले का इस्तिंबात करता है। इस्तिंबात के कानून से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि इस्तिंबात या इस्तिखराज मसाइल गौर व फिक्र का नतीजा होता है, और गौर व तदब्बुर में आरा का मुख्तलिफ होना भी आइन मुमकिन है। माहिरीन उसूल फिक़्ह कहते हैं कि दलाइल शरअ 4 है, सोर्सेज ऑफ शरीयत जो है वो 4 है। किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, इजमाई उम्मत यानी सहाबा और उसके करीब के ज़माने के अइम्मा का इत्तिफाक, और क़ियास। मकसद ये कि इस मसले का हल न कुरान मजीद से मालूम होता हो न हदीस रसूल से, तो जिस पे सहाबा का इत्तिफाक भी साबित ना हो तो उसका हल क़ियास के ज़रिए से मालूम किया जाएगा। अइम्मा अरबाआ ने लाखों मसाइल का हल क़ियास के ज़रिए पेश किया, वो सब के सब हक पर है। उनके दरमियान बाज़ मसाइल में फ़ुरूई इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन दीन के बुनियादी मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं। फ़ुरूई इख्तिलाफ फ़हम और इस्तिखराज के तरीक़ा कार में इख्तिलाफ की वजह से होता है। क्योंकि ये गौर व फिक्र का नतीजा होता है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इसे उम्मत के लिए बाइस रहमत फरमाया। तो बहरहाल दलाइल शरअ में से चौथी दलील क़ियास है, और उसकी ज़रूरत हर ज़मान और हर मकान में मौजूद रहेगी, इसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत शामिल हाल ना होती, लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला, तो चंद अफराद के अलावा तुम सब के सब शैतान के पीछे न निकलते। शैतान इंसान के दिल में वहम डाल के गुमराह कर देता है, वो गुमराही की बात को बड़ा मुज़य्यन करके पेश करता है, जिसकी वजह से कम इल्म लोग उसकी पैरवी करने लगते हैं। अलबत्ता कुछ समझदार और अहले इल्म लोग उसके जाल से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो फरमाया कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने तुम्हारी हिदायत के लिए तमाम सामान मुहैया कर दिए हैं, वो तरीके भी बता दिए जिनसे पेश आमदा मसाइल का हल मालूम किया जा सके, नए मसाइल का हल मालूम किया जा सके। फिर आगे जिहाद की तरगीब दी गई। कि अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल करें, जिहाद करें। फी सबीलिल्लाह की तशरीह पहले बता दी थी कि मोमिन की जंग सिर्फ इसलिए होती है लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्ली, ताकि अल्लाह के दीन को तमाम अदियान पे गालिब कर दे। इसका मतलब और मकसूद हुकूमत नहीं होती, माल और दौलत नहीं होता, या शुजाअत और बहादुरी को दिखाना नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग के मौके पे दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब व मुजरियस सहाब इहज़िमिल अहज़ाब, ए किताब को नाजिल करने वाले, बादलों को चलाने वाले, दुश्मन को मगलूब कर दे और हमें फतह नसीब फरमा। तो यहाँ भी ये बात समझाई गई कि मुसलमानों की जंग किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं होती, बल्कि उस किताब के प्रोग्राम को गालिब बनाना मकसूद होता है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। और फिर फरमाया ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, नहीं तकलीफ दी जाएगी मगर आपके नफ्स को। मकसद ये कि अगर लोग जिहाद के मामले में सुस्ती करते हैं तो उनका मुआखजा आपकी ज़ात से नहीं होगा, बल्कि आपसे सवाल आपकी ज़ात के मुतालिक होगा। लिहाजा आप अल्लाह के रास्ते में हमेशा मुस्तैद रहें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौक़े पे फरमाया कि कोई दूसरा मेरे हमरा जाए या ना जाए, मैं तन्हा भी दुश्मन के मुकाबले के लिए ज़रूर निकलूंगा। फिर आगे फरमाया वहर्रिज़िल मुमिनीन,
आप मुसलमानों को जिहाद पे आमादा करें और इसके लिए हमेशा तैयार रहें। आसल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू, करीब है कि अल्लाह ताला कुफ़ार की तरफ से लड़ाई को रोक दे। मकसद ये है कि अगर आप हम वक्त मुस्तैद रहेंगे तो दुश्मन पे उसका रौब पड़ेगा और वो किसी मुमकिन हमले से बाज आएगा। उसे पता चल जाएगा कि दूसरा फरीक गाफिल नहीं बल्कि हर वक्त जंग के लिए तैयार है, तो फिर वो सोच समझ के हमला करेगा। बसा औकात दूसरा फरीक सानी की मुस्तैदी की वजह से भी दुश्मन जो है जंग से इज्तिनाब करता है। अरब कहते हैं कि इज़ा हुसिया सकता, जब दुश्मन का मुहासरा करोगे तो उसको शिकस्त होगी, और अगर सुस्त हो जाओगे, जिहाद की तैयारी में गफलत बरतोगे, तो दुश्मन को हमला करने की तरगीब मिलेगी। लिहाजा आप हर वक्त मुकाबले और मुकातिले के लिए तैयार रहें। फिर फरमाया वल्लाहु अशद्दु बअसा, अल्लाह ताला सख्त गिरफ्त वाला है, व अशद्दु तनकीला, और उसकी सजा भी सख्त होती है। गिरफ्त तो बसा औकात दुनिया में हो जाती है और सजा आखिरत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। जब मोमिन अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के दीन के क़याम के लिए निकलेंगे तो दुश्मन को जिल्लतनाक शिकस्त होगी। दुनिया वालों ने देखा कि बदर के मकाम पे कुफ्फार को कैसे शिकस्त हुई। उनके पास दुनिया का हर किस्म का हथियार मौजूद था, उसके बावजूद मैदान जंग से भाग खड़े हुए। दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी चंद माह कबल हमसाया मुल्क में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफार पे कैसे फतह नसीब फरमाई। एक तरफ पूरी दुनिया की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ चंद हजार अफराद थे जिनके पास कोई असलहा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें फतह नसीब फरमाई। वजह यही थी कि मुसलमान अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए जान हथीले पे रख के मैदान में उतरे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए और कुरान मजीद को सही तरीके से सीखने और आगे सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।